Good morning, student. In previous lecture, we studied about the feature of Hindu undivided family. First, formation, liability, control, minor member. These 4 points given in the feature of Hindu family joint business. Now, partnership. Partnership is a popular form of business for small and medium scale business. Okay, it is popular for form of small scale industry and medium scale industry. As the size of business grows, okay, when the size of business grows up, one person is not enough to carry a managerial act एक्टिविटी ओके जैसा जैसा साइज़ बढ़ता है किसी बिजनेस का तो एक पर्सन उसको पूरी तरह मैनेज नहीं कर पाता सारी एक्टिविटीज़ को सो देयर फॉर टू और मोर देन टू पर्सन फॉर्म पार्टनरशिप टू कैरी आउट दिस बिजनेस एक्टिविटी ओके जब बिज़नेस बढ़ जाता है उसका साइज़ तो एक व्यक्ति के बस में नहीं होता है कि वो सारा उसको मैनेज कर पाए सारी एक्टिविटीज़ को तो वो क्या करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलके इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और यही पार्टनरशिप कहलाता है ठीक दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज़ ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटर ओके जो भी आपने ड्रॉबैक्स देखे थे डीमेरिट्स देखे थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में उनकी जो ड्रॉबैक्स कमियों को पूरा करने के तौर पे पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ है जैसे सोल प्रोप्राइटर में आपने देखा है अकेला व्यक्ति स्टार्ट करता है वही हैंडल करता है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होती है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक बिजनेस नहीं चलता तो सेम यहाँ पे वो ये उसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये पार्टनरशिप स्टार्ट होता है नाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन अगेन डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट राइटर्स फर्स्ट partnership is the relation between 2 or more person okay it is the relation between 2 or more person who have agreed to share their profit of the business and carried on by all or any one of them acting for all okay मीन्स इसमें वो सारे जो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा होते हैं एग्री होते हैं टू शेयर देयर प्रॉफिट और बिजनेस एक्टिविटी है कैरियड आउट बाय ऑल आइदर वन पर्सन ऑफ देम ठीक है या तो वो सारे मैनेज करेंगे या फिर उनमें से कोई एक व्यक्ति मैनेज करेगा दिस इज दिस डेफिनेशन गिवन बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अकॉर्डिंग 1932 एक्ट के तौर पे ये डेफिनेशन दिया गया था एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तौर पे नाउ अदर डेफिनेशन पार्टनरशिप फर्म इज अ group of a men okay group of a men who have joint capital or service for the prosecuting of some enterprises okay now feature definition is completed now feature of partnership okay first we study about the definition of the partnership now feature of the partnership business okay for features इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम पहला फॉर्मेशन कैसे बनता है हाउ इज फॉर्म formation the partnership form of business is governed by Indian Partnership Act okay it is governed by Indian Partnership Act 32 according to 32 act Indian Partnership Act 1932 it's come into existence by legal agreement between the partners okay ये एग्जिस्ट में कब आता है जब उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है लीगल एग्रीमेंट के तौर पे इसको लागू किया जाता है ओके and in this agreement the term and condition of the partners the ratio of the sharing of profit losses are specified okay in agreement जो भी agreement होगा उसमें किस बात का जिक्र किया जाता है फर्स्ट रेशियो ऑफ द शेयरिंग कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% कर रहे हैं 20-50% कर रहे हैं 80% कर रहे हैं देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट डिपेंड ऑन द योर शेयर्स and losses are specified in this agreement and term and conditions also mentioned in this agreement now the partner must enter into an agreement for carrying a lawful business okay it is a lawful business and the partner enter in this business with the agreement without agreement partner cannot enter in this business and run with the motive of earning profit and this business is run for earning motive okay each and every business run for profit motive okay business activity in previous topics you have seen each and every business run for earning money and making profit so if two people
join together for the charitable purpose is not partnership. Okay, when two people join for the charitable purpose, then it cannot be cannot be पार्टनरशिप बिजनेस. ओके, जब कोई दो व्यक्ति किसी चैरिटेबल फंड के लिए या चैरिटेबल के तौर पे यदि इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक, और बिजनेस स्टार्ट करें, तो वो नहीं कहलाएगा आपका पार्टनरशिप. ठीक. एंड इवन टू पीपल जॉइन टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी सच एज रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्टनरशिप. ओके, जैसे यहाँ पे एक और दे रखा है एग्जाम्पल, अनलॉफुल एक्टिविटी, जिस, ठीक है, जो लीगलाइज एक्टिविटी नहीं कहलाती यहाँ पे, सच एज रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग. इसमें भी आपने देखा एक व्यक्ति नहीं कर सकता रॉबरी या फिर स्टीलिंग, गैम्बलिंग. इसमें भी कुछ मेंबर्स मिले होते हैं, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा. ठीक है, ये लॉफुल एक्टिविटी नहीं है इसलिए. ठीक. नेक्स्ट, लाइबिलिटी. सेकंड पॉइंट, लाइबिलिटी. नाउ in this point, the liability of all the member of the partnership firm is unlimited. Okay, that is liability of the all the member of this partnership firm, they have unlimited liability. Okay, not limited. And the partners are individually and collectively liable to pay back the debt of the firms. Okay, all the partners of individually either collectively liable to pay back द डेप्थ ऑफ द फर्म. मीन जो भी कर्जा है फर्म का, वो सारे या तो इंडिविजुअली या कलेक्टिव रूप पे उसके ज़िम्मेदार होंगे. जो भी फर्म्स कर्जा ले रही हैं मार्केट से या बैंक से, तो वो सारे जिम्मा उनको रिपे करने के लिए सभी जिम्मेदार होंगे. ठीक है. एट द टाइम ऑफ लॉस, इफ द फर्म असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बैक द डेप्थ ऑफ द क्रेडिटर्स, कैन हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो. ओके, कभी लॉस हो जाता है किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइज बिजनेस में, तो यहाँ पे उनको पर्सनल जो असेट्स हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो भी उनको सेल करके सारा डेप्ट देना पड़ता है, इंडिविजुअल उनका पर्सनल. ठीक है, तो सारे जो पार्टनर्स हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. ठीक. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, रिस्क बेयरिंग. रिस्क बेयरिंग, the partners of the partnership firm share the profit of the firm in the ratio specified in the agreement. Okay, risk bearing means whenever they come into this business, by the legal agreement they enter into this business, and according to this agreement, the term and condition of the partners, the ratio of the sharing of profit and losses are specified according to this टर्म्स एंड कंडीशन. फर्म शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म रेशियो ऑन द स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट. जो भी एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया गया है, जो आपका शेयरिंग है, प्रॉफिट है, ठीक, जितना आपने रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक. एंड लॉस होता है तो उतना ही आपको परसेंटेज लॉस देना पड़ेगा वहाँ पे. इन केस ऑफ नो रेशियो इज स्पेसिफाई इन द एग्रीमेंट, देन द प्रॉफिट divide equally among all the members. Okay, suppose there is no ratio specified in the agreement, then in this condition the profit divide between all the members equally. Okay, ये आपने स्पेसिफाई नहीं किया वहाँ रेशियो, तो सारा जो प्रॉफिट होगा सभी के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक.